Yes, good morning students. But our new topic is section formula. So why we use this section formula? See, when there are some examples of like in your chapter 11th in class 9th, when we did the construction that this line divide this ratio and in this ratio, when they are talking about the ratio and we have to find the coordinates of that particular point, then the formula is when the ratio is m1 in ratio m2, so the coordinates of the point, like we are saying that P is that point, like this is the line AB and P is that point. कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है. सो हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. सो द फॉर्मूला इज m1 x2 m2 x1 by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. बच्चा, it is very simple formula. What you people will do, just remember 1 2 2 1 1 2 2 1 means पहले 1 2 means m1 x2 फिर 2 1 m2 x1 by m1 plus m2. This is x coordinate and this one is the y. Clear? I hope this formula is clear to you. And but when they said this like P is the midpoint of, how to find the coordinates of the midpoint, when they say that coordinates of the midpoint we have to find, what we will do, so direct formula for midpoint is, because midpoint means half either ratio 1:1, so directly, so coordinates of midpoint B क्या होंगे, सीधा x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. So this is the coordinates of the midpoint. Clear? Now bachas, we are going to start our exercise 7.2. I hope 7.1 is totally clear to you people. Clear? Now exercise 7.2. Question first. Read the statement and what they are saying, we will check it. They are saying find the coordinates of the point which divides the join of this. बच्चा लाइन कौन सी गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है. आपको पता है लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए. रेशो इज 2:3. क्लियर? सो अब हम बोलेंगे लेट P be the point. So coordinates of P be obtained by, कैसे फाइंड होंगे, कैसे होगा, m1 x2 m2 x1 by m1 plus m2 comma m2 m1 y2 m2 y1 by m1 plus m2. क्लियर? नाउ बच्चा व्हाट इज, अगर अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें कंफ्यूजन होती है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली राइट m1 मीन्स फर्स्ट पॉइंट 2, m2 दिस वन 3, x1 -1, y1 4, x2 sorry x1 -1 y1 7, x2 4 and y2 is -3. Just put these values in the formula. But we will get, see the m1 x2 2 into 4 2 into 4 m1 plus x2 plus m2 x1 m2 3 into x1, what is x1 -1 by m1 plus m2. M1 plus m2 is 2:2 plus 3 comma again m1 2 into y2, what is y2 -3 plus m2 3, what is y1 7 by m1 plus. Now 4 2s are 8 minus 3 by 3 plus 2 5 comma 3 2s are 6 plus 7 3 21 by 6.
इट इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5/5, 21 माइनस 6 15/6। सो इसको कट कर दो 1, इसको कट किया, सॉरी हियर इट इज 5, it is 3, so the coordinates be, so required coordinates be 1,3. I hope it is clear to you people. Noted. But the next question second is find the coordinates of the points of the trisection of the line segment joining this. But this is the most important question of our exercise and even most important concept. What is that? Now they are talking about trisection and we have to find firstly ratio and then the coordinates. बच्चा ये बस जिसको रेशो फाइंड करनी आ गई उसके लिए बहुत ईजी है, बट इनिशियली वट वी हैव टू लर्न इज हाउ टू फाइंड द रेशो व्हेन दे आर सेइंग कि दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय ट्राइसेक्शन है या 4 पॉइंट्स भी होंगे आगे क्वेश्चंस में, तो हाउ टू कैलकुलेट इट। बच्चा सी क्वेश्चन सेकंड फर्स्टली दे आर टॉकिंग अबाउट कि दो जो फर्स्टली लाइन इज 4, -1 and -2, -3. Here this is our coordinates of the line. They are saying find the coordinates of the points of the trisection of the line segment. Trisection मतलब 3 parts में divide कर रहा है। So this is A, this is B. यहाँ पे मतलब कोई पॉइंट होगा P, यहाँ पे Q, तभी 3 पार्ट्स बने 1 2 3। अब मुझे पहले तो P के कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करने हैं, पर कोऑर्डिनेट्स कब फाइंड होंगे व्हेन आई एम हैविंग द रेशो। बच्चा आप देखो रेशो कैसे फाइंड करनी है। सी व्हेन दे आर सेइंग टॉकिंग अबाउट P, अब ये देखो P के इस तरफ कितने पार्ट है 1 पार्ट, और जब उस तरफ जाएंगे तो कितने पार्ट बच जाएंगे 2, 1 और 2, तो इधर आगे 2। सो आप लिखोगे P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in the ratio 1:2। जिसको ये फाइंड करना आ गया उसके बाद तो फॉर्मूला ही लग रहा है। चेकिंग मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चा। व्हेन दे आर टॉकिंग दे आर सेइंग कि AB कोई लाइन है और उसमें जो कोई उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उस लाइन को, 3 पार्ट्स 1 2 3। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स तो तब पता चलेगी व्हेन आई एम हैविंग द रेशियो। तो हाउ टू कैलकुलेट द रेशियो बच्चा, हाउ टू कैलकुलेट हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर 1, इधर कितने पार्ट्स हैं 1 और 2 पार्ट्स। सो P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2। नाउ द फॉर्मूला इज जस्ट आप लोग लिखोगे सो P लेट सीधा लिख दो, देयर इज नो नीड फॉर द फॉर्मेलिटी, सिंपली लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ PB, coordinates of PB obtained as या by सीधा M1 x2 1 2 2 1 1 2 2 1। clear? Now what is M1 1 1, वट इज x2 -2। बच्चा फर्स्ट पार्ट में मैंने लिख दिया था सारे, अगर दोज हु आर कंफर्टेबल डायरेक्टली दे कैन सॉल्व इट। क्या आएगा 1 M1 x2 -2 प्लस M2 इज 4, सॉरी M2 इज 2, वट इज x1 4 बाय M1 प्लस M2। अब देखो नीचे वही पार्ट आ गए ना जितने बोला है, कितने पार्ट्स बोला था 3 2 + 1 3 आ गए ना, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट्स कॉमा M1, what is M1 1 y2 -3 plus M2 2 y1 -1 by M1 plus M2। clear? now -1 2 4 2s are 8 by 3, 1 minus into 3 minus 2 by 3। so what I am going to erase this one। यस बच्चा
यहाँ से क्या आएगा फिर मेरे पास 6/3 कॉमा -5/3, ये कट के आया 2 कॉमा -5/3. Clear? Now Q. So Q divides the line segment AB in the ratio. हाँ जी बेटा, अगर किसी को ध्यान आ गया होगा तो रेशो कैसे फाइंड करनी है. Q की बात कर रहा है. Q की तरफ कितने पॉइंट्स हैं, 1 और 2. सो इट इज 2. इधर कितना प्रोपोर्शन बचा, 1. 2:1 डिवाइड 2:1. So coordinates of QB obtained by, कैसे, सेम फॉर्मूला, m1x2 m2x1 by m1 plus m2 comma m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. हाँ जी बेटा जी, पुट द वैल्यूज. व्हाट इज m1 2 x2 minus 2 plus m2 1 x1 4 by m1 plus m2 2 plus 1 comma m1, what is m1 2 y2 minus 3 plus m2 1 into y1 minus 1 by 2 plus 1. So -4 2 plus 4 by 3 comma 3 2 6 minus 1 3. हाँ जी बेटा जी, 0/3 -7/3. It is 0 by anything, 0 divided by anything is 0, -7/3. These are the required coordinates. Let's check it for 1 minute and we will continue our third question. Have a look on this. बच्चा मैं इधर वाली साइड रब करती हूँ बिकॉज मुझे थर्ड क्वेश्चन की फिगर बनानी है. क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन थर्ड, फिगर बना रही हूँ मैं. क्या बोला है, टू द ऑन द स्पॉट. से पहले मैं फिगर बनाती हूँ, जब तक आप ये लोग क्वेश्चन नोट करो. इट इज A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. They are saying it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and this one is B. And on that side again 1 meter difference. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It is A B and C D. बच्चा, कोई बच्चा है, कौन सा बच्चा है, सेकंड पे. नाउ रीड द स्टेटमेंट. दे आर सेइंग, ये फ्लावर पॉट से आप लोग ड्रॉ कर लेना, मैं सिर्फ नंबर लिख रही हूँ. बच्चा, व्हाट दे आर सेइंग, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. दिस इज आवर रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 फ्लावर पॉट्स. बच्चा देखो 1 मीटर का डिफरेंस है, इनमें कितने फ्लावर पॉट्स रखे हैं, 100. सो AD इज इक्वल टू 100 मीटर. यहाँ से क्लियर हो गया. एज शोन हेयर, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन दी सेकेंड लाइन. बच्चा सेकेंड लाइन कहीं 1/4 मतलब यहाँ पे होगा कहीं पे वो बच्चा जिसके हाथ में फ्लैग है. तो अब देखो ये 100 मीटर पूरी की पूरी है, तो निहारिका ने कितना भागी है, वो 1/4.
किसका 1/4? जो AD है। तो पोजीशन ऑफ निहारिका, पहले लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका क्या होगा? 1/4 ऑफ AD। सो इट इज 1/4 इंटू 100, कितना आया? 225। सो पोजीशन क्या आई निहारिका की? मैं यहां से रब कर रही हूँ बच्चा। सो पोजीशन ऑफ निहारिका विल राइट पोजीशन, इसको मैं एन दे रही हूँ, पोजीशन ऑफ निहारिका इज, क्या पॉइंट हो गया? सेकेंड लाइन, मतलब एक्स एक्सिस पे सेकेंड लाइन, और डिस्टेंस कितना है? 25। तो यहाँ पे इसको लिख दो 25, हेयर 25, उसका पॉइंट आ गया एंड। नाउ दूसरा बच्चा कौन सा है? नाउ एंड द प्रीति शी कवर्ड 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन पे कहीं पे उसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया, इसको नाम दो P। क्लियर? नाउ पोजीशन ऑफ निहारिका इज n एंड नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीति, नॉट प्रीति, प्रीत इज 1/5, क्या बोला है? 1/5 ऑफ AD। 1/5 ऑफ AD मीन्स 1/5 ऑफ AD मीन्स 100, 20, it is 20. So position POSITION, position of Preet is क्या होगी? एक्स एक्सिस पे कितनी है? 8th लाइन, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? दिस, इट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ Preet। नाउ व्हाट दे आर सेइंग? दे आर सेइंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो हमें क्या निकालना है? PN। सो PN इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? याद है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वेरी गुड, पुट द वैल्यूज। नाउ 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 होल स्क्वायर। सो PN इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 होल स्क्वायर, 20 माइनस 25 माइनस 5 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 36 प्लस 25, इट इज इक्वल्स टू 41। सो डिस्टेंस बिटवीन प्रीत एंड निहारिका एंड प्रीत दोनों का सेम ही है, चाहे मैं इधर से देख लूँ चाहे उधर से। सो निहारिका मैं इसलिए पहले लिख रही हूँ कि उस बच्चे ने, उन्होंने खुद निहारिका का नाम लिया था पहले। डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत इज √41 मीटर, क्योंकि मीटर्स में डिस्टेंस था। नाउ बच्चा व्हाट दे आर सेइंग if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? बेटा याद हो मिड पॉइंट का मैंने अभी फॉर्मूला डायरेक्टली कराया है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी मैंने डायरेक्टली कराया है। सॉरी बच्चा, ये 36 प्लस 25 61 आया था। सॉरी it is 61, सॉरी। क्लियर? सॉरी बाय मिस्टेक बच्चा, आई हैव रिटन दिस, इट इज 61। नाउ रश्मि ने इन दोनों के, ये लाइन बनी थी, इन दोनों के मिड पॉइंट में किया। मिड पॉइंट का क्या था? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। सो लिखो, सॉरी आई एम राइटिंग हियर r। सो रश्मि कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या सीधा लिख दो पोजीशन ऑफ रश्मि फ्लैग।
position of Rashmi's flag is obtained by, कैसे होगी, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So is equal to, what is x1? This one, 2 plus 8 by 2, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. It is 10 by 2, it is 45 by 2. So बेटा जी यहाँ से क्या आ गया 5, 22.5. So उसने पोजीशन पूछा था, क्या होगी, 5th line and at a distance of, कितने डिस्टेंस पे, 22.5 मीटर. Just have a look for 1 minute, then I will rub it and we will continue our question 4th. क्वेश्चन 4th. बच्चा मैं इधर से जहाँ पे फिगर बनी है ना सिर्फ उतना ही रब कर रही हूँ कि वहीं पे सॉल्व है, ये तो अभी सिर्फ रब ही करना है. यस बेटा, क्वेश्चन 4. क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशो. अब रेशो फाइंड करनी है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स गिवन है. बच्चा ये दो तरीके से हो सकता है, मैं दोनों तरीके कराऊंगी. सेकंड पार्ट में भी सेकंड वे बोल करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वे करेंगे. क्या बोला है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट. कौन सी लाइन सेगमेंट, दिस A, B, कहीं पे ये पॉइंट है. लेट द रेशो बी m1:m2. सो इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मूला सीधा है, m1 x2 m2 x1 by m1 plus m2, m1 y2 m2 y1 by m1 plus m2 is equal to, किसके, इसी कोऑर्डिनेट्स यहीं से होगा. जस्ट पुट द वैल्यूज, m1 तो m1 रहेगा, x2 6 प्लस m2 रहेगा, x1 -3 by m1 plus m2, m1 ही रहेगा, y2 -8 प्लस m2 रहेगा, y1 10 by m1 plus m2 is equal to -1, 6. अच्छा ये कितना आ गया, 6m1 -3m2 by m1 plus m2, -8m1 plus 10m2 by m1 plus m2. बेटा जी याद रखना, जैसे अगर हम कंपेयर करते थे तो जो कंपैरिजन जब करते हैं कोऑर्डिनेट्स का, तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर होगा और वाई कोऑर्डिनेट के साथ. एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला नंबर, इसके साथ 6m1 -3m2 by m1 plus m2 is equal to -1, -8m1 plus 10m2 by m1 plus m2 is equal to 6. बच्चा अब मैं उधर से रब कर रही हूँ. हम दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा, दोनों पेपर में चाहे एक को सॉल्व करना, बट अभी नोटबुक में दोनों को कर लेना. क्यों, क्योंकि बहुतों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये तो अभी एक्स वाला किया था, अगर वाई वाला सॉल्व करते तो शायद डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आते. नहीं, कोऑर्डिनेट्स दोनों में सेम ही आए. क्लियर है. तो अभी मैं सिर्फ आपको दोनों ही सॉल्व करके दिखाऊंगी, लेकिन इन द एग्जाम यू कैन इवन सॉल्व जस्ट वन. मीन्स चाहे इधर यू कैन सॉल्व द x1 पार्ट, means x coordinates, or you can solve the y coordinates. It's up to you, but here I am going to solve both the coordinates. पहले ये लेकर कर लो. 6m1 -3m2 m1 plus m2 is equal to -1 by 1, cross multiply. 6m1 -3m2 is equal to -1 m1 plus m2. 6m1 -3m2 is equal to -m1 -m2. बेटा नाउ
जस्ट शिफ्टेड द टर्म्स ऑन वन साइड, मीन्स m1 एक तरफ कर दो, m2 दूसरी तरफ. व्हेन आई शिफ्ट द टर्म्स साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया. 6m + 1m 7m1, 3 - 1 2m2. बेटा मुझे m1 रेशो m2 फाइंड करना है, मीन्स ये वाला m2 इधर ले इज इक्वल टू 2, इधर वाला 7 इस तरफ, m1/m2 2/7 बस. सॉरी अभी इसका किया, अभी मैं इसको भी सॉल्व करूँगी ऑल्सो, सो दैट इट इज़ कन्फर्म टू यू पीपल कि ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन सा सॉल्व कर रही हूँ, मेरी रेशो सेम आएगी. कितना आया? -8m1 दैट इम्प्लाइज प्लस 10m2 इज इक्वल टू 6m1 + 6m2. हाँ जी बेटा जी, m वाली टर्म एक तरफ कर दो, m2 वाली टर्म दूसरी तरफ. इट इज -14m1 - 4m2. बेटा अब -14m1 बाय इधर आ गया m2 इज इक्वल टू -4 दैट इम्प्लाइज मुझे सिर्फ m1 m2 चाहिए, तो -14 इधर शिफ्ट कर दूंगी, -4 - 14, 2 के टेबल पे कट किया 2 7. सो रेशो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. नाउ फिफ्थ पार्ट बचा, ये रब कर दो इधर वाला, आप उधर वाला नोट कर लो जब तक. क्लियर है? यस बेटा जी. क्वेश्चन फिफ्थ, they are saying find the ratio in which the line segment joining, line segment कौन सी? this one, is divided by the x axis. बच्चा x axis अगर किसी को याद हो तो x axis के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? उनमें क्या जीरो होता है? वाई पार्ट. वाई वाला पार्ट हमारा जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब उसमें किस तरह के पॉइंट्स होंगे जिसमें वाई जीरो होगा और दूसरा क्या होगा? सिर्फ एक्स वाला पोर्शन होगा. तो आप लिखोगे पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होते हैं? x, 0. अभी हमें रेशो फाइंड करनी है जो किस फॉर्म में करे, इस पॉइंट में फॉर्म करे. तो मैं लेती हूँ लेट द रेशो बी. बेटा इधर यू कैन टेक m1 रेशो m2 और यू कैन टेक k1 k रेशो 1. इसमें k रेशो 1 क्यों लिया? क्योंकि एक पोर्शन 1 आ गया तो मुझे आसानी रहेगी सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी. क्लियर है? If you are comfortable with m1 and m2, then you can take here m1 and m2 as your ratio. Let the ratio be k ratio 1. So the point coordinates of the point so obtained b क्या होंगे? k. चल मैं m1 m2 से चलती एक बार. m1 x2 m2 x1 m1 + m2 m1 y2 m2 y1 बाय m1 + m2. अब बेटा k रेशो 1 है हमारे पास. m1 क्या है? k. वट इज x2? -4 प्लस वट इज m2? 1. वट इज x1? 1 बाय k + 1 वट इज m1? m1 is k, y2 5 plus m2 1, y1 -5, m1 + m2. What is k + 1? -4k + 1 by k + 1, 5k - 5 by k + 1. क्लियर बच्चा? नाउ दे आर सेइंग कि जो ये है एक्स एक्सिस की पे कट कर रहा है. सो आप लिखोगे
on x-axis, y coordinate is 0. तो मैं किसको इक्वेट कर दूंगी, 0 को. तो y coordinate is this. मैं अभी वो वाला रब कर रही हूँ, जब तक आप इसको देखो. क्लियर. हाँ जी बेटा जी. y coordinate is 0, so means 5k minus 5 this one by k plus 1 equal to 0 by 1 cross multiply. this 5k minus 5 is equal to, तो पूरा 0 हो गया. 5k is equal to माइनस है, इधर आके प्लस, k is equal to 5 by 5. so ratio is 1:1. क्यों? क्योंकि k की वैल्यू 1, दूसरा तो 1 था ही. फिर क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन. तो यहाँ पे x k की जगह वैल्यू पुट कर दो. x k की जगह यहाँ पे क्या पुट करूँ, इसको लिख देती हूँ -4k + 1 x. क्यों? क्योंकि ये x कॉमा 0 ही लिया मैंने, इस फॉर्म में लिख दो. सो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पुट सीधा लिख दो 4 × 1 + 1 1 + 1 = x -4 + 1/2 -3/2. so the coordinates of the point is -3/2, this. I hope bacha now this concept is totally clear to you people, and then we will continue our next questions in the next video. I hope you understand the concept and will do the practice. Clear? Bacha, if there is any doubt, ask me, comment on YouTube even. Thank you so much.